Welcome guys, once again all of you in today's geometry session. My name is Mangesh Viritore, and now in our today's session we are going to start with the new chapter, that is the second chapter of the 10th geometry, Pythagoras theorem. Okay, and this chapter having the weightage of marks in your board exam, that is the 7 marks for this chapter, Pythagoras theorem. In this chapter we are going to learn about some main concepts or the theorems that are related to the Pythagoras theorem, as well as we are going to prove the Pythagoras theorem too. तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं इस थ्योरम में, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पाइथागोरन ट्रिपलेट. व्हाट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन दिस first chapter. After that we have to study about the similarity in right angle triangles. After that we are going to discuss about the Pythagoras theorem, application of Pythagoras theorem, theorem of 30 60 90, theorem of 45 45 90, and finally we are going to discuss about the Apollonius theorem. तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, जिस चैप्टर को आपको वेटेज है 7 मार्क्स का. तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम. So you had already studied about the Pythagoras theorem and what is the need of Pythagoras theorem. तो ये मालूम है आपको कि what is Pythagoras theorem, इसकी कंसेप्ट क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये हम पहले कुछ क्लासेस में देख चुके हैं. सपोज वी हैव एनी राइट एंगल ट्रायंगल ABC, then we know that the Pythagoras theorem is related to the length of the sides of right angle triangle. कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसके तीनों साइड का जो रिलेशन होता है that is must be a Pythagoras theorem, and that we know that the relation of the three sides of triangle, right angle triangle, belong to the Pythagoras theorem, that is the square of the length of largest side is always equal to the sum of the squares of remaining two sides of a triangle. जैसे कि हम इस ट्रायंगल में देख सकते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा पहले स्टेटमेंट, व्हाट इज द पाइथागोरन स्टेटमेंट ऑफ Pythagoras statement for the Pythagoras theorem, that is in a right angle triangle the square of largest side, the square of the length of largest side is equal to the sum of the squares of two its perpendiculars. तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं the two remaining sides of right angle triangle are perpendicular to each other. So इन दो perpendicular के लेंथ का स्क्वायर की सम AC के स्क्वायर जितना होगा, ये हमने जाना है पाइथागोरस थ्योरम में. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे. इन ट्रायंगल ABC we have, in triangle ABC angle B equals to 90 degree. Therefore we can state that is AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. तो आपको ये पहले से ही पता है, आपको इस स्टेटमेंट के बारे में आप 9th में पढ़ चुके हो इन ब्रीफ. तो पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो बिलोंग करता है थ्री साइड्स ऑफ द एनी राइट एंगल ट्रायंगल. तो उसमें द लार्जेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज एंड द रिमेनिंग टू साइड्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर्स. तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टू परपेंडिकुलर्स. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. अब इसके बाद हम ये जानने वाले व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो आप इसके बारे में भी जान लीजिए कि आपको ये पता है पहले से कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं. That is, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है. सपोज वी हैव एन एग्जांपल, check whether the three numbers, that is 3 4 and 5 are is Pythagorean triplet और नॉट. ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम देखेंगे. तो यहां पे लिखते हैं दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में जानने के लिए पहले एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पहले मैं बता दूंगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं. ओके, अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स इन विच the square of the largest number is equal to the sum of the squares of remaining two smaller numbers, then the three numbers are called Pythagorean triplet. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि Pythagorean triplet हम किसे कहते हैं कि अगर कोई भी तीन नेचुरल नंबर्स है, कोई भी तीन रियल नंबर्स हो कि जिनमें लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर अगर दो रिमेनिंग नंबर के स्क्वायर के सम जितना होगा, तो उन तीनों नंबर्स को हम कंबाइनली पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं.
तो चलिए यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, इज इट द 3, 4 and 5 आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर वी हैव दैट इज 5 is largest number, 5 is largest number, therefore we can square it, 5 square it is equal to 25. Let the equation first. Now remaining two numbers, sum square of the remaining two numbers, that is 3 square plus 4 square, it is equal to 9 plus 16, and this is also equal to 25. So therefore from first and second we can conclude that is 5 square is equal to 3 square plus 4 square, and therefore we can say 3, 4 and 5 is a Pythagorean triplet. Is a Pythagorean triplet. Is a Pythagorean triplet. ओके, तो यहाँ पे आपको नोटिस हुआ होगा कि here the largest number is 5 and the square of the largest number 5, that is 25, and the sum of the squares of remaining two numbers, that is 3 square plus 4 square, that is 9 plus 16, and the sum of these two squares is also equal to 25. It means here we can say that the RHS of the both of the equation first and equation second are equal. That's why we can write the LHS of both इक्वेशंस आर इक्वल, दैट इज 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और यहाँ पे हमने नोटिस किया है कि लार्जेस्ट साइड का या फिर लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो दूसरे दो नंबर्स के स्क्वायर के सम जितना है। सो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और इसी की वजह से हम कहते हैं 3, 4 and 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ऐसे ही ट्रिपलेट आप फाइंड भी कर सकते हो, लेकिन पहले हम देख लेंगे व्हाट इज द फार्मूला फॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक फार्मूला है, चलिए देखते हैं फार्मूला ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या है पहले देखते हैं। सपोज इफ ए एंड बी आर एनी टू natural numbers, then a square plus b square comma a square minus b square and 2ab is or are Pythagorean triplet. Pythagorean triplet. तो यहां पे हम नोटिस कर सकते हैं दैट इज इफ ए एंड बी आर एनी टू नेचुरल नंबर्स, एंड यहां पे एक बात मैं मेंशन करना भूल गया, ए एंड बी आर एनी टू नेचुरल नंबर्स वेयर एज दैट इज ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। तो यहां पे आपको नोटिस करना होगा कि ए और बी दो नेचुरल नंबर्स है जिसमें से ए बी से ग्रेटर होना चाहिए, तब a square plus b square, a square minus b square and 2ab, these three numbers is called Pythagorean triplet. अब इसका एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं पहले एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव लेट a equals to 5 and b equals to 3. कंसीडर करते हैं a equals to 5, b equals to 3. Here a is greater than b, a is greater than b, therefore first one, therefore a square plus b square it is equal to 5 square plus 3 square it is equal to 25 plus 9. 25 plus 9 it is equal to 34. ये हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट a square minus b square it is equal to 5 square minus 3 square it is equal to 25 minus
9, 25 minus 9 करने के बाद अब मिलेगा that is 16, and last one that is 2ab, it is equal to 2 into a 5 into b 3, it is equal to 2 5s are 10, 10 3s are 30, so 30. So therefore we can say that therefore 34, 16 and 30 is a Pythagorean triplet. Is a Pythagorean triplet. Okay, so by using the Pythagoras theorem you can verify are they Pythagorean triplet or not. It means 34, 16 and 30 ये Pythagorean triplet है या नहीं, ये आप वेरीफाई कर सकते हो by using previous method. जैसे कि पिछले एक एग्जांपल में हमने देखा था that is the 5 square is equal to 3 square plus 4 square. इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो आप कि 34, 16 और 30 ये Pythagorean triplet है कि नहीं. लेकिन आपको याद रखना है दिस इज द फॉर्मूला फॉर द Pythagorean triplet a square plus b square, a square minus b square and 2ab. These three numbers are called Pythagorean triplet combined, but you must have to take that a is greater than b. आपको a b से greater लेना है. चलिए अब इसके बाद हम देखने वाले हैं that some properties of right angle triangles that we had already studied about the property of 30 60 90 degree theorem and property of 45 45 90 degree triangle. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने पिछले साल ही प्रूव किए थे और बहुत इन ब्रीफ आपको उस साल में दिया गया था थर्ड चैप्टर में इन ट्रायंगल्स में हमने पहले देख लिया था व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 45 45 90 डिग्री. So first of all property of property of 30 degree 60 degree 90 degree right triangle. तो चलिए पहली प्रॉपर्टी पाते हैं देखते रहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 एंड 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल. तो 30 60 और 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी हमने पिछले साल देखी थी. इफ द मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर 30 डिग्री एंड 60 degree, then side opposite to 30 degree is half of its hypotenuse as well as the side opposite to 60 degree is root 3 by 2 times of its hypotenuse. तो चलिए यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं. Suppose we have a right angle triangle ABC, whereas angle B equals to 90 degree, AC be the hypotenuse, angle A equal to 30 degree and angle C equal to 60 degree. तो आपको प्रॉपर्टी पता है that is प्रॉपर्टी में दिया गया है साइड अपोजिट टू 30 degree angle is half the hypotenuse and second दिया गया है साइड अपोजिट टू 60 degree angle is root 3 by 2 times hypotenuse. तो ये आपको प्रॉपर्टी में बताया गया है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल एक 30 और दूसरा 60 डिग्री है तो 30 डिग्री के अपोजिट की साइड वो हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है और 60 डिग्री के अपोजिट की साइड वो हाइपोटेन्यूज के रूट 3 by 2 टाइम्स होती है. तो यहां पे हम देखते हैं दैट इज हियर वी हैव BC is side opposite to 30 degree. Therefore we can write that is BC equal to half of AC because AC is the hypotenuse of the given right angle triangle ABC. अब उसके बाद next AB is side opposite to 60 degree angle. 60 degree. Therefore AB is equal to root 3 by 2 AC. तो ये जो दो मेजर थिंग्स है that are the length of the two sides related to the hypotenuse, that is the side opposite to 30 degree and side opposite to
60 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि हमेशा अगर राइट एंगल ट्रायंगल 30, 60 और 90 का होगा तो 30 डिग्री की अपोजिट की साइड हमेशा हाइपोटेनस की हाफ होगी और 60 डिग्री की अपोजिट की साइड जो हमेशा हाइपोटेनस की रूट 3/2 टाइम्स होगी। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब इसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री राइट ट्रायंगल। तो चलिए फिर से यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब उसके मेजर्स जो होंगे 30 और 60 डिग्री नहीं होंगे एक्यूट एंगल्स के, वो होंगे 45, 45। इसका मतलब वो दोनों एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो अगेन वी हैव द राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज PQR हियर। In triangle PQR, angle Q equal to 90 degree, angle P equal to 45 degree, angle R equal to also 45 degree. तो यहां पे आप नोटिस कर सकते हो, because we had already studied in the 9th standard about the converse of isosceles triangle theorem. और वो converse ये था, if any two angles of a triangle are equal, then side opposite to them are also equal. तो यहां पे हम नोटिस कर सकते हैं इन ट्रायंगल PQR, that is angle P equal to angle R 45 degree each. Therefore, the side opposite to angle P is QR and side opposite to angle R is PQ. They both are equal in length. तो लेकिन हमें यहां पे देखना है what is the property of 45, 45, 90 degree right angle triangle. तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री का होगा, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है द साइड ईच साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। जैसे कि हमने पिछले प्रॉपर्टी में देखा था, द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। बट अब यहां पे ये होगा द ईच साइड व्हिच इज अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज जस्ट 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो चलिए यहां पे देखते हैं पहले इन ट्रायंगल PQR, that is angle P equals to angle R equals to 45 degree given, or therefore we can say that therefore PQ equals to QR by converse of isosceles triangle theorem. Converse of isosceles triangle theorem. But in 45 degree, 90 degree right triangle, in 45 degree right, 90 degree right angle triangle, that each side opposite to 45 degree angle is 1/√2 times of the hypotenuse. और यहां पर दो साइड है जो 45 डिग्री एंगल के अपोजिट के साइड है, therefore we can write that is therefore PQ equal to QR equals to 1/√2 times of PR. तो ये है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। तो 45, 45, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में every side which is opposite to 45 degree is just 1/√2 times of its hypotenuse. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने इस पहले सेशन में पाइथागोरस थ्योरम के चैप्टर के देखे हैं, जिसमें पहले हमने देखा है व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें भी आपको पता है द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रिमेनिंग परपेंडिकुलर्स। उसके बाद हमने देखा था फॉर्मूला फॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्मूले में हमने देखा था इफ a and b are any two natural numbers such that a is greater than b, then a square plus b square, a square minus b square and 2ab, these three are the Pythagorean triplet
नेक्स्ट हमने देखा था द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 एंड 90 डिग्री, जिसमें 30 डिग्री के अपोजिट की साइड जो होगी वो हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होगी और 60 डिग्री के अपोजिट की साइड जो होगी वो √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज होगी। उसके बाद देखा था द प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस प्रॉपर्टी शोज दैट द एवरी साइड व्हिच इज अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द इट्स हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम पहला सेशन खत्म करते हैं। अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट आपके मन में हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है।